can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Killing the game and I gotta go ask anybody. They all heard about it, they know when the kid and he spitting it, know when he getting it, better not get in my way. Got this, I like do whatever I say, cause I could go put you on blast. People been mad at me cause I don't follow them back. I'm laughing cause that is so whack. Why they all trying to act like they been bossing when really their bosses been bossing them up? Nobody ever been telling me what I would do when I keep in the cash, why the shit out of luck. I want it more, now I get what I wish. Upgrading now with the pants that I whip. Making 6 figures, don't talk about it. Money ain't shit, it's about how you think. Tired of people who making excuses, then they complain about losing. Tell me about what you been doing, tell me about how you been moving. You ain't got nothing to prove then. I did it all on my own, they looking like all of my clones. I don't be following trends, fuck all the popular clothes. You faking and everyone knows. I just be keeping it real, they thinking that I have to go sign a deal, but really the people just found an appeal. I'm in my own lane and I'm steering the wheel, ayy. It's funny how it goes, funny how it goes. Talking about shit they don't even know. Why they tryna tell me about what I should do? They don't know about the shit I've been through. It ain't what it seems, it ain't what it seems. Been 4 years, I've been chasing dreams. This ain't overnight, this ain't overnight. Working every night till the sunrise. Fed up with too many things, every time the phone rings, everything the world brings. I've been trying to grow wings, fly away to the kings. I need to take my advice, telling myself and I know that I'm right. Don't listen at first, so I go say it twice. Just think about what's gonna be important in life. I can't waste my time thinking about the girls and the social life that I lost. Everything that's worth it ain't free, and a good life comes with a big cost. I'm a bit lost, but I bounce back like Big Sean, and I will attack like King Kong. Yeah, I've been on and they been wrong, and I stay strong like whoa. Wish I could talk to the younger me, tell him you don't need to stress out. Everything gonna be good soon, just focus on being the best out. Nevertheless, I won't never get less than I'm worth, and I know I'm the best now. Looking around and it's looking like everyone busy, they wanna invest now. These people the reason I doubted me. I thought that I wouldn't be good enough, but now that they are reaching out to me, I'm wishing I always had knew what's up. I'm living the same as the listeners, but I just stuck with the vision. I've been trying to motivate everyone listening, tell them to trust what they want and to stick to ambition. It's funny how it goes, funny how it goes. Talking about shit they don't even know. Why they tryna tell me about what I should do? They don't know about the shit I've been through. It ain't what it seems, it ain't what it seems. Been 4 years, I've been chasing dreams. This ain't overnight, this ain't overnight. Working every night till the sunrise. Okay guys, welcome back to your Digital Marketing Training, Visual Learning. I'm your host Krantesh Singh. So I welcome you to this your Digital Marketing Training. I hope you guys are doing very best at your place. So let me know in the chat box if you are able to hear my voice, and then we will start the session. Okay, so a very good afternoon to everyone. Okay, so today's topic is to learn about Google Ads. Okay, so we have seen what are the various ways why should we use Google Ads in the last session. Okay, and we have started like what is Google Ads, why Google Ads. Okay, so we will go through a small recap. Okay, so we will go through a small recap जिसमें हम देखेंगे कि क्या चीजें हमने अभी तक देखी हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक. And then today's session is going to be the most epic session because I'm going literally in depth in things, and if you do not pay attention, you will lose the attention, okay, or you will lose the learning. Okay, so people are joining, so we will wait for just more couple of minutes and then we will start. Okay, admit. Okay, so guys, have you received an SMS from me today? Yes or no in the chat box. Have you received an SMS for regarding today's session? Yes or no? Okay, so Gaurav has not received, Rishabh has received, okay, Priya has received. Okay, so Gaurav, please update me your phone number. I guess your phone number is wrong with me. Okay.
So please update with your current mobile number, and then I will add you to the list. Okay, so Vishal has received, Arpit has, Priya has. Okay, all right guys. So आज का सेशन हमारा इस तरह सेशन होने वाला है कि लाइक जो हम क्या एक छोटे से फ्रेज नहीं बोलते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है, तो वो चीज आज होने वाली है, ठीक है। अगर आपने हल्का सा भी अटेंशन नहीं रहा, ठीक है, हल्का सा भी लूज किया, बिकॉज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड विच इज देयर, ठीक है। अगर हल्का सा भी पीछे का याद नहीं है और चीजें नहीं है तो फिर आप ट्रैक लूज कर दोगे। ओके, जस्ट लाइक वी आर रेसिंग इन अ रेस, ठीक है, वी शुड नॉट लूज अवर ट्रैक। ओके ओके, और जितने भी लोगों ने, जो भी लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, जस्ट अ स्मॉल फ्रेंडली रिमाइंडर टू अपडेट इट हियर। ओके, so I have added a post like how many assignments you have completed, so just tick mark that option. Okay, like you have completed assignment 1 2 3 4 5 6 or whatever assignment you have completed, or if you guys have any question you guys can post in the Facebook group itself, or you guys can ask me. Okay, I hope I am able to solve your queries. Okay, so let me just share my screen. Okay, yeah, so let me know in the chat box if you guys are able to see my screen, yes or no, in the chat box. Okay, if you are able to see this Google mind map. Okay, awesome guys. Okay, so are you guys able to see this screen, this mind map that I've created for you? Also I will be doing a small recap. Okay, so let us just do a small recap कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, and then we will go in depth in the session. Okay, so are you guys ready? Type ready in the chat box. If you are ready, then type ready in the chat box, because I need you to be very very attentive for this session. Awesome guys. ओके, सो छोटा सा रिकैप फॉर द कि हमारा एजेंडा क्या है और हम चीजें क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं. अ स्मॉल रिकैप. ओके, so and then people are still joining, then we'll continue after just 2 minutes. Okay, so what is Google Ads? So Google Ads is an advertisement platform provided by Google. Why Google Ads? Because Google Ads it is inbound marketing. Inbound marketing का ये मतलब होता है कि जो लोग हैं वो आपके पास में चल के आ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वेरी है वो आपके पास में चल के आ रहे हैं, और अगर आपका अगर आपका प्रपोजिशन या फिर आपकी जो ऑफरिंग है, ठीक है, वो स्ट्रांग है, देन क्या हो सकता है कि वो चीज वो आपकी सर्विस अवेल कर ले. ओके, सो यू कैन यूज इट फॉर ड्राइविंग टू ट्रैफिक टू वेबसाइट और जनरेशन लीड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑल. तो दो एस्पेक्ट थे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक होता है एडवर्टाइजर्स, एक होते हैं पब्लिशर्स. पब्लिशर्स के पास में क्या होता है, उनकी वेबसाइट, वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन. एडवर्टाइजर्स वो होते हैं बिजनेस ओनर्स. ओके ओके, सो पब्लिशर्स. So are you guys able to hear my voice? Okay, I think Gaurav is not able to hear my voice. I do not know why. So type yes or no in the chat box if you guys are able to hear my voice loud and clear. Okay, so I think Gaurav there is some issue from your side. Okay, so double check your connection. ओके, सो नाउ देखो गूगल एड्स के दो पब्लिशर्स, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो एडवर्टाइजर्स होते हैं और एक होते हैं पब्लिशर्स. पब्लिशर्स जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा एक वेबसाइट है, तो इन्हें हम कहते हैं पब्लिशर, जो चीज पब्लिश करते हैं, लाइक कंटेंट क्रिएटर. एडवर्टाइजर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, इनको एक इनकी कोई प्रोडक्ट होते हैं, फिर इनकी कोई सर्विसेज होते हैं जिसके बारे में इनको एडवर्टाइज करना है, तो ये कहलाते हैं एडवर्टाइजर्स. अब पब्लिशर्स क्या होते हैं, ठीक है, पब्लिशर्स को क्या चाहिए, पब्लिशर्स को अगर पैसे कमाने हैं तो वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए अपनी जो भी उनका वेबसाइट है वहां पर एक प्लेस देते हैं जहां पर कोई एडवर्टाइजर आके ऐड कर सकता है. ओके, सो दीज ऑल द थिंग्स हमने लास्ट टाइम बात की थी, और गूगल दोनों के बीच का एक मीडिएटर है जो गूगल एड्स एक सर्विस प्रोवाइड करता है. ओके,
सो ये चीजें हैं। एंड देन कुछ हमने जार्गन से बात की है। देखिए सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, पीपीसी क्या होती है, गूगल एडवर्ड्स क्या होती है, ये सब एक ही चिड़िया का नाम है जो है गूगल एड्स। ओके, सो अगर कोई भी आपसे कभी बात करता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग आपको आती है, अगर आपको पीपीसी आता है, आपको गूगल एडवर्ड्स आता है, तो यस यू जस्ट कैन से यस आई नो ऑल ऑफ दिस एंड दीज ऑल द थिंग्स आर नोन एज गूगल एड्स। ओके, तो सभी सब चीजें गूगल एड्स के पार्ट हैं। अब देखो लास्ट टाइम हमने बात की थी दो तरह के ट्रैफिक होते हैं, ऑर्गेनिक होता है एसईओ से, एसईओ में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत रिजल्ट बहुत रिजल्ट डिटरमाइंड बाय गूगल एल्गोरिथम, और पेड में तुरंत आपको ऐड मिल जाता है, ठीक है, आप नंबर डे 1 से आप रैंक 1 पे आपके ऐड शो होने लगते हैं। ओके, और इसमें जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है, आप जिस तरह का भी ऐड दिखाना चाहते हो इसमें आप दिखा सकते हो। एसईओ में ऐसा नहीं होता है, एसईओ में सर्च इंजन को आपको अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, गूगल एड्स के बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स ने साइन अप कर रखा है, ठीक है, गूगल एड्स के साथ में। गूगल अकाउंट स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आप गूगल एड अकाउंट बनाते हो अपना, ठीक है, एंड देन उसके अंदर मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हो। कैंपेन्स के अंदर आप क्या होता है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, और उन एड ग्रुप्स के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग और स्पेसिफिकेशन। एड ग्रुप के अंदर क्या होता है, एड ग्रुप के अंदर हम टारगेटिंग करते हैं एंड देन एड बनाते हैं हम लोग। ओके, सेम। Okay, so there has been some network issue from my side. So let me know in the chat box. Where was I? Okay, so I was telling about Google Ads account structure, or I was at advantages of Google Ads. Okay, so just let me know in the chat box. So there has been some network issue from my side. Okay, so I was telling about jargons. Okay, so jargons. Okay, so jargons की इट मीन्स दैट कि सर्च इंजन मार्केटिंग, पेपर क्लिक और गूगल एड्स सब सेम चीजें हैं, ठीक है। और गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था कि गूगल एड, आप अपना एड अकाउंट क्रिएट करते हो, उस एड अकाउंट के अंदर आप कैंपेन्स बना सकते हो, मल्टीपल कैंपेन, ठीक है, लाइक कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3। और उन कैंपेन्स का एक कैंपेन के अंदर क्या बनते हैं, एक कैंपेन के अंदर, जस्ट अ सेकंड गाइस, oh I have not shared my screen, just okay, I hope you guys are able to see my screen now. Okay, ओके, सो एड अकाउंट गूगल का एड अकाउंट स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ओके, और इसी तरह हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी हम जब एक नया सैंपल ऐड बनाएंगे, देन यू विल बी एबल टू मोर कॉम्प्रिहेंड इट, ठीक है। अब देखो किस 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 तरह के आप कैंपेन बना सकते हो। आप यहाँ से सर्च ऐड बना सकते हो। सर्च ऐड क्या होते हैं, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं। ओके, उसके ऐड बना सकते हो। डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट पे जो भी एड्स वगैरह जहाँ पर दिखते हैं गूगल के, ठीक है, वहां पर आप जो ऐड अपने रन करा सकते हो। शॉपिंग ऐड बना सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपकी प्रोडक्ट इंटेंट कीवर्ड है, जैसे कि बाय वॉशिंग मशीन, बाय फ्रिज, ओके, बाय शूज, बाय नेकलेस, ठीक है, बाय गोल्ड, बाय लैपटॉप, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब आप प्रमोट करते हो, देन यू गाइस कैन क्रिएट शॉपिंग एड्स। ओके, अदरवाइज और इसके अलावा आप वीडियो ऐड बना सकते हो, ठीक है, जो आप ऐड यूट्यूब पे दिखा सकते हो लोगों को, ठीक है। तो वीडियो एड्स भी आप गूगल एड्स के थ्रू बनाते हो। आप ऐप के अंदर जो एड्स दिखते हैं वो भी आप यहाँ से बनाते हो। स्मार्ट एड्स, ठीक है, स्मार्ट एड्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एड्स होते हैं। डिस्कवरी एड्स क्या होते हैं, इसमें आप जीमेल पे आप जीमेल के इनबॉक्स में आप ऐड दिखा सकते हो। ओके, सो yeah, so how many of you have seen ads on your Gmail inbox? So type yes in the chat box if you have seen Gmail ads. Okay, okay, awesome guys. So last time मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना एक Google ad account बनाओगे, ठीक है। You just have to go to ads.google.com, then you have to click on new Google Ads account experience। You are फिर आपको Google बोलेगा कि लेट अस क्रिएट अ कैंपेन। ओके, सो मगर आपको वहां पर कैंपेन क्रिएट नहीं करना है। यू हैव टू you have to create your ad account without creating a campaign. Okay, so create an ad account without campaign, then check details and submit, explore your accounts. Okay, then ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको क्या करना है, अपना एड अकाउंट बनाना है।
So I hope you guys do not have any problem in creating your ad account. So let me know in the chat box if you guys have understood how to create your Google Ads account, because in the last session of YouTube I have shown exact steps how you can create your ad account, your new ad account. Okay, so let me know in the chat box if you are able to create your ad account without any issues. Okay, so type me in the chat box if you guys able to create your ad account without any worry. Okay. Okay, so Gaurav is able to, Rishabh is able to create his own ad account, Google ad account. Okay, so Gaurav Dubey is also. What about rest of you guys? Are you not, are you guys not able to create your ad account? Yes or no in the chat box. Just give me your response, guys. See, I'm not able to see your facial expressions. Okay, I am on webinar. Okay, so now this only your response could tell me if you are able, if you are getting things or not. Okay, so coordinate with me. Okay, for the time you are in this webinar, so that I could know that I'm delivering everything perfectly. This is not for yeah. So now फिर हमने देखा था कि गूगल सर्च एड किस तरह से काम करता है. ओके, सर्च एड किस तरह से काम करता है, लाइक क्वेरी. सर्च एड का मतलब ये होता है कि हम अपनी एक क्वेरी गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं. जैसे कि अगर मैंने google.com पे मैं जाता हूँ. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो अगर मैं सर्च करता हूँ बाय वॉशिंग मशीन. ओके, और दूसरा हमने मान लो दूसरा हमने क्वेरी किया बाय, या फिर हम करते हैं कोचिंग फॉर MBA. ओके, तो कोचिंग फॉर MBA. ओके, तो ये चीज मैंने की, कोचिंग फॉर MBA. एंड देन इस तरह से इट मीन्स हमने क्या किया. देखो मैं यहाँ पर एसेंस बता रहा हूँ आपको कि गूगल सर्च एड किस तरह से काम करता है. आप अपनी क्वेरी डालते हो. ओके, आप अपनी क्वेरी डालते हो, इसका मतलब आप एक कीवर्ड डालते हो गूगल पे, और उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या होते हैं, आपको स्टार्टिंग में एड्स दिखते हैं. ओके, यहाँ देखो वॉशिंग मशीन के भी आप यहाँ पर एड देख सकते हो. ठीक है, और यहाँ पर आप MBA कोचिंग की भी एड देख सकते हो. ओके, अगर मैं यहाँ पर डालूं गेट कोचिंग. ओके, तो गेट कोचिंग इज फॉर गेटिंग अप सीट. ओके, गेट कोचिंग का भी कोई सा भी ऐड नहीं चल रहा है. ओके, गेट कोचिंग ऑनलाइन देखते हैं. ओके, सो देखो गेट कोचिंग ऑनलाइन, यहाँ पर देखो ऐड चल रहा है ग्रेड अप. तो ये जो ऐड दिख रहा है आपको, ये शॉपिंग ऐड है. ओके, देखो यहाँ पर लिखा है ना स्पॉन्सर्ड. ठीक है, तो दीज आर लाइक शॉपिंग एड्स. ओके, सो और देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो नीचे नीचे की तरफ में भी आपको एड्स दिख रहे हैं. ओके, गेट ऑनलाइन कोचिंग, डीप लर्न, गेट ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स. तो ये सब जो है, ये सब भी आपको ऐड दिख रहे हैं. ओके, सो जो बीच में रिजल्ट दिख रहे हैं वो तो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हो गए, बट जो ऊपर सबसे टॉप पे और टॉप सॉरी बॉटम पे जो ऐड जो दिख रहे हैं आपको रिजल्ट्स, वो सारे क्या है, ऐड. ठीक है, इट मींस एडवर्टाइजर ने इसके लिए पे किया है. अब पे किस चीज के लिए किया है, पे इस चीज के लिए किया है कि जब भी ये कीवर्ड गेट कोचिंग ऑनलाइन सर्च किया जाए, तो क्या हो, उनका एड शो हो. ओके, नाउ अब देखो गूगल एज ए कंपनी, उनका दो गोल है कि यूजर सेटिस्फैक्शन एंड एडवर्टाइजर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर यूजर्स. ओके, कि गूगल के यूजर्स को उनका जो चीज ढूंढ रहे हैं वो चीज मिल जाए, और एडवर्टाइजर्स को वो चीज दे दें कि जो एडवर्टाइजर चाहता है. तो एडवर्टाइजर चाहता है कि उनके कीवर्ड्स पे उनके ऐड दिख जाए. तो ये सब चीजें गूगल एज ए कंपनी का गोल है. सो लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी थी कि CTR क्या होता है. ठीक है, CPM क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, CPL कन्वर्जन किसे कहते हैं, CPA क्या होता है, बिड क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है. ओके, सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, अगर आपको इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, बिकॉज आई हैव कवर्ड दिस इन द लास्ट सेशन. CTR क्या होता है, इफ यू गाइस हैव नॉट understand, then just let me in the chat box. I will just recap it. Okay, if you have already understood the meaning of CTR, CPM and click through rate क्या होता है, ये सारी चीजें, then I'm going to go ahead. So yes or no in the chat box. If you guys know about all the terminology related to Google Ads, then type yes, or if you guys do not know, just type no in the chat box. Okay, yes. Okay, okay, so Gaurav and Arpit, Shamli do not know. Okay, okay, so I'm going to repeat now. There is no option left for me. Okay, तो CTR देखो क्या होता है. CTR का मतलब ये होता है कि जब भी आपने अपना ऐड चलाया, ठीक है,
तो ये कुछ टर्म्स वगैरह हैं जी, आप गूगल एड्स में काफी ज्यादा यूज होंगे। जब मैंने अपना ऐड चलाया, मेरा ऐड यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज परफेक्टली फाइन है कि मेरा ऐड यहाँ पर शो हो रहा है, मगर आपका ऐड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स कि अगर आपका ऐड 100 बार यहाँ पर शो हो रहा है, 100 बार आपका ऐड यहाँ पर शो हुआ और उसमें 5 लोगों ने क्लिक किया, ओके, तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल क्लिक अपॉन टोटल इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब होता है कितनी बार दिखा। ओके, सो एज ए ऑडियंस को कितनी बार दिखा आपका ऐड और कितने लोगों ने क्लिक किया, और जितना आपका सीटीआर ज्यादा होगा उतना बेटर ऑफ, उतना क्या होगा, आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सीपीएम क्या होता है कि कितना बार आपका ऐड लोगों को दिखा सिर्फ। ओके, इट मींस कि आप यहाँ पर आप क्लिक पे नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा कॉस्ट पर माइल। ओके, इट मींस 1000 बार आपका ऐड दिखने के आप कितने पैसे दोगे। ओके, ये चीज हमारी ब्रांड अवेयरनेस में आती है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी बार लोगों को आपका ऐड दिखेगा उतनी बार क्या होगा, उनके दिमाग में एक इंप्रेशन जाएगा कि हाँ यू गाइज एग्जिस्ट। ओके, आपकी सर्विस ये है, तो इंप्रेशन आप लोगों के दिमाग में जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर माइल। ओके, 1000 इंप्रेशन का क्या कॉस्ट होगा, इंप्रेशन आप समझ गए हो कि आपका ऐड कितनी बार दिख रहा है। सीपीएल क्या होता है कि एक लीड को एक्वायर करने में आपको कितनी कॉस्ट लगी, तो कॉस्ट पर लीड कहते हैं इसको। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन एक कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है या फिर कोई एक्शन होता है जिसे जो आपके लिए बेनिफिट होता है। ऐसे मान लेते हैं कि मेरा जो कन्वर्जन ये है कि मेरा वीडियो लोग देखें। ओके, मेरा वीडियो लोग देखें, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ही मेरे लिए कन्वर्जन हुआ। हो सकता है कि मेरे लिए कन्वर्जन हो कि लोग मेरा एक आर्टिकल पढ़े। ओके, हो सकता है मेरे लिए जो कन्वर्जन हो वो क्या हो, एक फॉर्म फिल कराना। ओके, साइन अप फॉर्म फिल कराना या फिर सब्सक्राइब करना, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कन्वर्जन। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने में मुझे कितनी कॉस्टिंग आई। ओके, मेरे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना हुआ, ये सारी चीजें, उसे हम कहते हैं सीपीए। बिडिंग क्या होती है कि आप एक एक्शन के लिए कितना पे कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बिड। इस बिडिंग का भी सिंपल सेंस है, जब भी ऑप्शन होता है तो आप बिड करते हो कि मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए, मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कोई ज्यादा बिड करेगा तो क्या होता है, वो उसकी बिडिंग अच्छी होगी तो वो चीज एक्वायर कर लेगा। ओके, बिडिंग ये चीज। कन्वर्जन रेट क्या होता है, कन्वर्जन रेट गाइस ये होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए और उनकी उतने में से कितने लोगों ने आपके ऑफर को अवेल किया। ओके, टोटल परचेज या फिर लीड जनरेटेड अपॉन टोटल विजिटर, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग आपके वेबसाइट पे आए और 20 लोगों ने आपसे परचेज किया, देन द कन्वर्जन रेट ऑफ योर वेबसाइट इज 20%। ओके, so I hope this Google Ads terminology is crystal clear in your head. Okay, so just type in the chat box if this is clear or not. Okay, okay, awesome. ओके गाइस, ऑसम गाइस, ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी। ओके, यहाँ से हम गूगल एड्स में जो कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे जब भी एड वगैरह हम चलाएंगे। एड रैंक क्या, मैंने लास्ट टाइम आपको एड रैंक के बारे में बताया था। ओके, सो एड रैंक क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एज एन एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट्स के और सर्विस के बारे में, मगर आपकी एड सबसे ऊपर क्यों शो हो, ठीक है, आपकी एड सबसे ऊपर क्यों शो हो। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन किया तो वर्लपूल इंडिया, गोदरेज अप्लायंस, ठीक है, वर्लपूल इंडिया का एड सबसे पहले शो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों। ओके, सो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ एड रैंक। इट मीन्स कि इस एड की जो वैल्यू है, ठीक है, इस एड की जो क्वालिटी है, रेलेवेंसी है, वो ज्यादा है इस एड से। ऐसा नहीं है कि गोदरेज के पास में पैसे कम है या फिर वर्लपूल के पास पैसे ज्यादा है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। ये चीज इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ एड रैंक। और एड रैंक कैसे आप कैलकुलेट होता है, एड रैंक होता है आपको क्वालिटी स्कोर से और कितना आपने बिडिंग के पैसा लगाए हैं। इट मीन्स आपको आपकी अगर क्वालिटी स्कोर ज्यादा है और अच्छी बिड आपने लगा रखी है फॉर दी कीवर्ड, देन क्या होगा, देन आप उस कीवर्ड पे आपका जो ऐड होगा वो रैंक करेगा। ओके, इस चीज का नाम दिया गया एड रैंक। ओके, सो उसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपका सीटीआर कैसा है, आपका क्लिक थ्रू रेट कैसा है ऐड का। इट मीन्स कि कितने ज्यादा लोग आपके ऐड को देख के कितने ज्यादा लोग आपकी ऐड को देखकर उस पर क्लिक कर रहे हैं, रेलेवेंसी क्या है आपकी लैंडिंग पेज की,
ठीक है, लैंडिंग पेज पे कंटेंट किस तरह से लिखा हुआ है, लोडिंग टाइम क्या है आपके वेबसाइट का, आपकी एड अकाउंट की हिस्ट्री कैसी है, डोमेन कैसा है आपका, ठीक है, कहीं आप स्पैमी डोमेन पे तो लोगों को नहीं भेज रहे हो, ठीक है। और क्वालिटी स्कोर जो है वो आपका नियर अबाउट 6 to 7 होना चाहिए आउट ऑफ 10। ओके, और टिप्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ये है कि आप रिलेवेंट कीवर्ड्स पे आप ऐड चलाओ, ठीक है, आप अच्छी ऐड लिखो, राइट कैची एड्स, आप जो कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो उन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल भी करो कहाँ पर, अपने ऐड में। ओके, आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी यूज करो, नेगेटिव कीवर्ड्स अभी हम आएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है। ओके, एंड देन जो जिस कीवर्ड पे आप ऐड चला रहे हो वो कीवर्ड आपको अपने लैंडिंग पेज पे भी यूज करना है। ओके, सो ये चीज थी। अब देखो, आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। देन बिफोर रनिंग योर सर्च एड, आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल लैंडिंग पेज टेस्ट करने हैं, ठीक है, आपको रिटारगेटिंग भी करनी है। और अगर आपकी इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि कॉस्ट पर क्या, क्लिक पर कॉस्ट, ओके, क्लिक पर कॉस्ट नहीं, हाँ सीपीसी, ठीक है, क्लिक पर कॉस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि सीपीसी, आईसीपीसी, cost per click, okay, sorry sir. So if your industry has like cost per click, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी जो गूगल आपका जो कीवर्ड है उसके लिए ज्यादा पैसे ले रहा है, ओके, देन इट मींस कि आपकी जो इंडस्ट्री की कॉस्ट पर क्लिक है वो ज्यादा हाई है। एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम इस कीवर्ड के लिए ऐड चलाते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ओके 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 ओके, अगर मान लेते हैं लर्न, ये कुछ कीवर्ड है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आईआईटी कोचिंग, ये भी कीवर्ड है, ठीक है, और एक है यूपीएससी कोचिंग, ओके, तो ये भी एक कीवर्ड है। अभी मैं जाता हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट पे, ओके, देन आई विल शो यू, जहाँ से आपको अपने ads.google.account पे जाना है। आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट पे साइन इन करना है। अब देखो, मैं सीपीसी के बारे में बता रहा था। ओके, सो मैं यहाँ पर अभी अपने गूगल एड अकाउंट्स में लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है, दिस इज अ न्यू फ्रेश अकाउंट। अब मैं देखो टूल्स सेटिंग पे जाऊंगा, देन आई विल यूज कीवर्ड प्लानर, ओके, यहाँ से कीवर्ड प्लानर पे गया तो कीवर्ड प्लानर से क्या होगा, आपको देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि इसलिए मैं ऐड चलाना चाहता हूँ एक कीवर्ड की, जो कीवर्ड है मेरा लर्न डिजिटल मार्केटिंग मान लेते हैं, ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग का मेरा जो कीवर्ड है ये, ठीक है, इस पे मुझे ऐड चलाना है। तो मैं क्लिक करूंगा गेट रिजल्ट पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, जो एवरेज कॉस्ट है आपका, अगर ऐड सबसे ऊपर शो कराना है, इफ यू वांट टू शो योर एड एट द टॉप ऑफ द पेज, ओके, देन आपको कितना पे करना पड़ेगा, देखो टॉप ऑफ द पेज कितना आ रहा है, 128 रुपीज, ओके, और अगर सबसे नीचे शो करना है तो कितना आ रहा है, 14.91, ओके। सो ये चीज कहलाती है आपका कॉस्ट पर क्लिक, ओके। सो 128 रुपए जो है ये इस कीवर्ड के लिए क्या है, आपका गूगल ने इतना पैसे बिडिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 128 रुपए आपके कट जाएंगे जब आप ऐड चलाओगे, ओके। इसका मतलब है कि अगर आपका ऐड गूगल पे आ गया है तो इसका मतलब है कि 128 रुपए आपको पे करने ही करने पड़ेंगे अगर आपको इस कीवर्ड के लिए ऐड चलाना है और कस्टमर एक्वायर करने हैं, ओके। सो दिस इज नोन एज कि अगर आपकी इंडस्ट्री का हाई सीपीसी है, ठीक है, अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हम लोग इस कीवर्ड को उठा के दूसरे कीवर्ड को सर्च करते हैं, आईआईटी कोचिंग, ओके, और आईआईटी कोचिंग को सर्च किया मैंने, फिर मैंने किया, ठीक है। अब देखो आईआईटी कोचिंग का जो कीवर्ड है, इसमें टॉप ऑफ द पेज पे ऐड चलाने के लिए कितना कॉस्ट जा रहा है, इस पे 89 रुपीज, ओके। इट मीन्स कि जब मैंने आईआईटी कोचिंग के लिए सर्च किया ना, जब भी आप सर्च करोगे आईआईटी कोचिंग मान लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इस कीवर्ड के लिए देखो बहुत सारे ऐड वगैरह अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर, देखो यहाँ पर जैसे ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द पेज में शो हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द पेज में ये है कि इन्होंने लगता है बिडिंग अपनी कम कर दी है, ओके, इन्होंने अपनी बिडिंग कम कर दी है। तो बिडिंग कम करने से क्या हुआ, इनका कॉस्ट कितना जा रहा है, कॉस्ट कम हो गया है, तो 19 रुपए पर क्लिक जाएगा, ओके। सो इस कीवर्ड के लिए जो ऐड यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो बायजूस को 19 रुपए अपने अकाउंट से देने पड़े। जब मैंने क्लिक किया तो बायजूस को कितने रुपए देने पड़े, 19 रुपए देने पड़े, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है कॉस्ट पर क्लिक। और विद्या मंदिर को भी
मे भी हो सकता है कि इन्होंने बायजूस को ऊपर शो कर रहा था ऐड, तो हो सकता है कि इन लोग को 20 रुपए देने पड़े, इन लोग को शायद 19 रुपए देने पड़े, बट ये एक मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। इसी के अराउंड आपको बिडिंग करनी है, ओके। इसी के अराउंड आपको 19 रुपए से ज्यादा ही बिडिंग करनी है, तभी आपका ऐड शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ओके। तो लो रेंज का मतलब हो गया बॉटम ऑफ द पेज, और हाई रेंज हो गया मतलब टॉप ऑफ द पेज, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, सो जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सर्च ऐड में किस तरह से कॉस्टिंग काम करती है, सीपीसी क्या होता है, कैसे चेक करते हैं सीपीसी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ठीक है। ऑसम। ओके ओके गाइस, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको सीपीसी के बारे में बताया कि किस तरह से चीजें चलती हैं। अब मैंने लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होते हैं, फ्रेज मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं। अब देखो गूगल के देखो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन के पास में कीवर्ड्स आते हैं, तो यूजर अपनी क्वेरी यहाँ पर सर्च करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने सर्च किया प्रोटीन पाउडर, ओके, प्रोटीन POWDER, मैंने सर्च किया मतलब प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर से भी देखो मेरे पास में ऐड यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, 3 ऐड मेरे पास में यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक हो रहा है अमेजोन का, एक हो रहा है न्यूट्रावे का, और ये चीज जब मैंने सर्च किया प्रोटीन पाउडर, तो हो सकता है कि ये जो ऐड है प्रोटीन पाउडर पे भी आपका ऐड दिखाए, ठीक है। और जब आप सर्च करो वे प्रोटीन पाउडर, ठीक है, इट मींस वे प्रोटीन पाउडर पे भी आपका ऐड शो करे, ठीक है। मगर देखो वे प्रोटीन पाउडर पे किसने ऐड चला रखा है, healthcart.com ने, ओके। अब प्रोटीन पाउडर पे किसने ऐड चला रखा है, Amazon ने। देखो जितने भी इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं जेनरिक कीवर्ड, ठीक है। इन पे जो आपकी कॉस्टिंग होती है वो काफी महंगी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ इस कीवर्ड पे कितना कॉस्ट जा रहा है मेरा, देखता हूँ, प्रोटीन POWDER, ओके। सो प्रोटीन पाउडर जो है 29 रुपीज, ओके, 29 रुपीज इस पे आपका खर्च होगा जब भी आप इस कीवर्ड पे इस कीवर्ड के लिए ऐड चलाओगे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेज मैच और इस सारी चीजें के लिए, because many of you have not attended the last session, so I have to talk about phrase match modifier क्या होते हैं। It is very important कि देखो ब्रॉड मैच क्या होते हैं, ठीक है। ब्रॉड मैच, देखो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कितने, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्या किस तरह से। देखो जब भी आप ऐड चलाओगे, सर्च ऐड, ठीक है, फिर कोई सा भी आप अगर आप कीवर्ड से रिलेटेड टारगेटिंग कर रहे हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऐड ग्रुप में कीवर्ड सबमिट करने पड़ेंगे, ओके, कि इस कीवर्ड पे आपका ऐड शो करे। तो आप जब सबमिट करते हो ब्रॉड मैच कीवर्ड तो करते हो, तो इट मींस आप उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इस तरह से सबमिट करते हो कि प्रोटीन पाउडर पे आपका ऐड चल जाए, ठीक है, ये हो गया। और मान लेते हैं कि जब आप प्रोटीन पाउडर सबमिट करते हो एज ए ब्रॉड मैच, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके इस पे जब कोई भी सर्च करेगा प्रोटीन पाउडर तब तो आपका ऐड शो करेगा ही, मगर मान लेते हैं कोई सर्च करता है बेस्ट प्रोटीन पाउडर, ओके, अगर कोई सर्च करता है बेस्ट प्रोटीन पाउडर तब भी आपका ऐड शो करेगा, ओके। अगर कोई बेस्ट प्रोटीन पाउडर सर्च करता है तब भी आपका ऐड शो करेगा, तो ये चीज कहलाती है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। अब दूसरा आते हैं हम लोग ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ओके। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है गाइस, कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर में ये होता है कि अगर आप चाहो, ठीक है, आपकी जो सर्च क्वेरी हो, इट मींस आप ये गूगल को ये बोलोगे कि गूगल अगर कोई सर्च करे प्रोटीन, ठीक है, अगर कोई प्रोटीन सर्च करे प्लस उसमें पाउडर भी होना चाहिए वर्ड, ठीक है, तब आपका सिर्फ ऐड शो करे, ओके, प्रोटीन पाउडर तभी आपका ऐड शो करे, ठीक है। इट मींस ये दोनों कीवर्ड्स कहीं ना कहीं क्वेरी में या सर्च टर्म में होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो जैसे कि वे प्रोटीन पाउडर, ठीक है, तो वे प्रोटीन पाउडर एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें प्रोटीन भी आ रहा है पाउडर भी आ रहा है, ठीक है। अब हम जैसे दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं पाउडर फॉर प्रोटीन, ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ भी पाउडर भी आ रहा है प्रोटीन भी आ रहा है, मगर क्या पाउडर पहले आ जा रहा है प्रोटीन बाद में आ रहा है, ओके। सो इसमें इस चीज को ये चीज कहलाती है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिसमें आप ये गूगल को ये बोलते हो कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो
कहीं ना कहीं सर्च क्वेरी में इस तरह से आनी चाहिए, आगे या पीछे किसी तरह से भी। ओके, और जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेस्ट पाउडर फॉर प्रोटीन ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेलेवेंसी भी आ रही है, ठीक है, मगर देखो यहाँ पाउडर भी कीवर्ड यूज हो रहा है और प्रोटीन भी यूज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम गूगल को इंडिकेट करते हैं कि गूगल को देखो प्लस साइन जो मैंने लगा रखा है ना प्रोटीन के आगे, ये गूगल को इंडिकेशन करने के लिए लगा रखा है, ठीक है। और पाउडर जो साइन लगा रखा है वो भी मैंने गूगल को इंडिकेट करने के लिए लगा रखा है। तो ये चीज हमारी फॉलो होती है किस कैटेगरी में, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में। ओके, अब हमारे पास आता है फ्रेज मैच क्या होता है। ओके, तो फ्रेज मैच पे बात करते हैं। ओके, अब देखो फ्रेज मैच पे क्या होता है गाइस, फ्रेज मैच में आप गूगल को ये बोलते हो कि जो यूजर का सर्च क्वेरी है उसमें आपका जो फ्रेज चाहते हो, ठीक है, वो चीज आपकी उसमें इंक्लूड हो। जैसे कि आईआईटी कोचिंग, जैसे कि मान लेते हैं आपने आईआईटी कोचिंग सर्च किया, आपका आपने फ्रेज मैच इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट, फ्रेज मैच इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक डबल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है, डबल कोट्स लगा देते हैं। ओके, सो मैं इस चीज को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो फ्रेज मैच इसका मतलब ये होता है कि आप गूगल को ये बोलती हो कि जब भी कोई क्वेरी सर्च करे तो आपका जो जिस फ्रेज के लिए आप कर रहे हो टारगेट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आईआईटी कोचिंग के लिए, तो मैं सर्च करता हूँ बेस्ट आईआईटी कोचिंग, ठीक है, तो आपका जो ऐड होगा वो इस कीवर्ड पे भी दिखाएगा, बेस्ट आईआईटी कोचिंग। और हम देखते हैं, और अगर आप देखते हो, मान लेते हैं आप देखते हो कि आईआईटी कोचिंग इन लखनऊ, ओके, तो इस कीवर्ड के लिए भी ऐड दिखाएगा। मगर अगर आप सर्च करते हो कोचिंग फॉर आईआईटी, ठीक है, तो आपका ऐड नहीं शो करेगा। अगर आप इस कीवर्ड को कर रहे हो टारगेट तो आपका ऐड शो नहीं करेगा, बिकॉज आप ये फ्रेज मैच होती है, पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पर आना चाहिए। ओके, ये पूरा का पूरा फ्रेज जब तक नहीं आएगा कीवर्ड में तब तक आपका ऐड शो नहीं करेगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज मैच। ओके, और हम लोग कह सकते हैं कि आईआईटी कोचिंग इन कोटा, ठीक है, या फिर आईआईटी कोचिंग इन राजस्थान, ठीक है, आईआईटी कोचिंग इन राजस्थान, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, इन कीवर्ड्स को मैं स्मॉल में कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको भी मैं स्मॉल में कर देता हूँ, लोअर केस में, ठीक है, इसको भी मैं लोअर केस में कर देता हूँ, बिकॉज जनरली हम लोग लोअर केस में ही क्या करते हैं, अपनी सर्च क्वेरी करते हैं। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इस तरह से। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड आपको समझ में आया। ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है, इसमें हम आगे पीछे प्लस लगा देते हैं कीवर्ड्स में, ठीक है, कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, हमारा ऐड शो कर जाए, ठीक है। सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, जहां पर आप गूगल को बोलते हो एग्जैक्ट मैच, ठीक है, जहां पर गूगल को ये बोलते हो कि गूगल जब जब इस कीवर्ड से एग्जैक्टली मैच करे तब क्या करो, आप मेरा ऐड शो करो, ठीक है। जैसे कि, और उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जस्ट ओके, देखो आपने गूगल को बोला, गूगल जब भी कोई सर्च करे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसका मतलब है कि आप गूगल को स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि गूगल जब भी कोई इस कीवर्ड को सर्च करे ना तभी मेरा ऐड शो करो। ओके, तो ये कीवर्ड हो गया मेरा लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने इस कीवर्ड पे ऐड चलाया, इस कीवर्ड पे ऐड चलाया, ठीक है, या फिर मान लेते हैं लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ओके, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ओके। तो इस कीवर्ड पे जब आप ऐड चलाओगे इसमें आप गूगल को बोल रहे हो कि जब यही मेरा सर्च हो, जब सर्च क्वेरी यही एकदम एग्जैक्टली यही हो तभी मेरा ऐड शो करो। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, आप गूगल को ये बोलते हो, आप गूगल को ये सर्च करते हो कि जब कीवर्ड, जब आपका कीवर्ड बस यही हो, आगे पीछे कुछ नहीं, प्रीफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही सफिक्स होना चाहिए, जब आपका कीवर्ड बस एग्जैक्टली यही हो तभी मेरा ऐड शो करे, ठीक है। तो ये चीज आप गूगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, लाइक इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, देन आप अपना लिखते हो कि लर्न इंग्लिश ऑनलाइन मान लो, ठीक है। और भी आप जैसे कि जिस कीवर्ड पे भी ऐड देना चाहते हो आप उसको लिख सकते हो लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ठीक है,
इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये चीज सर्च करनी है गूगल कीवर्ड्स पे जाके कि आप किस कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहते हो और उस कीवर्ड का क्या बिडिंग है, कितनी बिडिंग जा रही है, क्या मंथली एवरेज सर्चेज है। जिस कीवर्ड के मंथली एवरेज सर्चेज ज्यादा है उसी कीवर्ड पे आप ऐड चलाओ तो ही रिजल्ट आएगा। जिस कीवर्ड के सर्चेज नहीं है उस कीवर्ड पे ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपको ही ऐड दिखेगा, ऑडियंस को ऐड दिखेगा नहीं, ठीक है। और फिर गूगल एड्स यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, so I want everyone to be so attentive, okay। और now tell me guys, आपको समझ में आ गई कि ब्रॉड मैच क्या होता है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है। ओके, so type clear in the chat box, okay, okay, just type clear in the chat box if you have understood all the 4 type of keyword match types, okay, type clear in the chat box। क्योंकि अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई, बिकॉज देन इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन इन द लेटर सेक्शन। ओके, ओके, okay, I can repeat guys, okay। So but first let me know कि how many of you have understood। okay, modifier वाला बता दीजिए, ठीक है। okay, so Arpit has understood it। what about rest of you guys? Are you guys not with me? Are you have guys have left the session and okay, okay guys, now again I'm going to repeat it, okay। it is perfectly fine, ठीक है। कि जब भी हम गूगल पे देखो, गूगल को हम जब भी ऐड चलाएंगे, ठीक है, तो हमें पहले तो कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, ऐड ग्रुप बनाएंगे। और ऐड ग्रुप में हम ये चीज मेंशन करते हैं कि किस कीवर्ड के लिए, किस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो। बिकॉज सर्च ऐड है ना, तो सर्च ऐड में क्या होगा, आपकी क्वेरी ही तो आपको रिजल्ट दिखाएगी। तो कौन सी कीवर्ड पे आप अपना ऐड शो कर रहे हो, ये चार टाइप से मैच करता है। आप किस कीवर्ड पे ऐड दिखाना चाहते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपका मेन कीवर्ड है प्रोटीन पाउडर, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया कि प्रोटीन पाउडर पे आपका ऐड दिख जाए, ठीक है। बिकॉज देखो आप हर कीवर्ड के लिए आप पे कर रहे हो, ठीक है। आप हर कीवर्ड के लिए क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। गूगल को पे पर क्लिक कर रहे हो, है ना। आप गूगल को हर कीवर्ड के लिए पे पर क्लिक कर रहे हो, ठीक है। कि जब भी क्लिक होगा आपके ऐड पे तो आपको उसके पैसे कट जाएंगे आपके। तो वही चीज आप गूगल को ये बताओगे कि आप किन किन कीवर्ड्स के लिए आप पेमेंट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। सबसे पहला जो मैच कीवर्ड्स आता है, जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है, जिन कंपनीज का बजट बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करती हैं, ब्रॉड मैच कर देती हैं कि जैसे भी कहीं से मैच हो जाए, ठीक है। इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी मैच हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं हमारा मेन कीवर्ड है प्रोटीन पाउडर, ठीक है। मगर अगर कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट प्रोटीन पाउडर, ठीक है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर इन लखनऊ, ठीक है, तब भी आपका ऐड शो कर देगा, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है ब्रॉड मैच मॉडिफायर की। इसका मतलब आपका तो पर्टिकुलर कीवर्ड ये था, ठीक है, आप तो इसके लिए पेमेंट करने रेडी हो, मगर आपका जो ऐड है वो इस कीवर्ड के लिए भी शो करेगा। और ये चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो आप ये चीज कर सकते हो, मगर ये चीज ऐड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग जाएगी, ठीक है। तो अच्छा ऐड इसको चलाना नहीं बोलेंगे। अब हमारा आता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड था, जिस पे आप ऐड चलाना चाहते थे, वो था प्रोटीन पाउडर पे, ठीक है। आपका मेन कीवर्ड था प्रोटीन पाउडर, ठीक है। मगर आप गूगल को ये बोल रहे हो कि देखो यहाँ पर अगर कोई सर्च करेगा ना प्रोटीन भी, अगर कोई प्रोटीन भी सर्च कर दिया तब भी आपका ऐड शो कर सकता है, ओके। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स में क्या होगा, अगर कोई प्रोटीन भी सर्च करता है जो कि बहुत जेनरिक कीवर्ड है, अब प्रोटीन की सर्च करने पे तो ऐड नहीं आना चाहिए ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है गूगल को, ठीक है। अब देखो प्रोटीन पाउडर का ब्रॉड मैच मॉडिफायर में ये आते हैं कि हमने गूगल को ये बताया कि हमारे जो कीवर्ड है उसमें उस यूजर की जो सर्च है, ठीक है, उसमें प्रोटीन कीवर्ड होना ही चाहिए प्लस पाउडर भी होना चाहिए, ओके।
तो जितनी भी क्वेरीज होंगी जिसमें प्रोटीन और पाउडर दोनों वर्ड्स आते हैं आगे या पीछे किसी तरह से भी, उन कीवर्ड्स पे आपका ऐड शो करेगा। उसे हम कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ओके, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, ओके तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो वाई प्रोटीन पाउडर किसी ने सर्च किया तब भी आपका ऐड शो करेगा। ठीक है, पाउडर फॉर प्रोटीन अगर सर्च किया तब भी आपका ऐड शो करेगा, बिकॉज आपने प्लस लगा रखा है। प्लस लगाने का मतलब ये है कि आगे या पीछे सफिक्स के साथ में, सफिक्स के बाद में, ठीक है, सफिक्स या प्रीफिक्स, ठीक है, तो वो चीज हो तब भी आपका ऐड शो करेगा, बिकॉज आपने प्लस प्रोटीन पाउडर प्लस पाउडर लगा दिया है। ओके, तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। एंड देन फ्रेज मैच ये होता है कि आप गूगल को ये बोलते हो जब तक ये फ्रेज, जब तक आईटी कोचिंग का जो ये फ्रेज है, ठीक है, शो नहीं होता है कीवर्ड यूजर के कीवर्ड में, तब तक मेरा ऐड शो ना करो। जब ये कीवर्ड कहीं ना कहीं शो करेगा देन मेरा कीवर्ड शो करो। तो यहाँ पर हम कहते हैं बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन लखनऊ, आईआईटी कोचिंग इन कोटा, आईआईटी कोचिंग इन राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आईआईटी कोचिंग जो कीवर्ड है ये फ्रेज मैच हो रही है। ठीक है, मतलब ना ही कोचिंग पहले आ रहा है ना ही आईआईटी बाद में आ रहा है। ठीक है, दोनों साथ में है, तो ये क्या हुआ, फ्रेज हो गया आपका। ओके, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, जब आप गूगल को बोलते हो कि गूगल जब लोग एग्जैक्टली यही कीवर्ड टाइप करें, जब लोग एग्जैक्टली यही कीवर्ड टाइप करें तभी मेरा ऐड शो करो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ओके, so I hope guys कि now you have got a clarity regarding keyword match type. Okay, awesome guys। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी थी। ठीक है, कि चीज कैसे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द माइंड मैप। ओके, अब देखो, आई एम नॉट ऑडिबल। ओके गाइस, am I audible guys? Yes or no in the chat box? Okay, crystal clear। Okay, so I guess yeah, I'm audible. Okay, so Gaurav, please check your connection from your side. I think there might be some issue from your side. Okay, because every other participant can see hear my voice, that's why। Okay, अब हम बात करेंगे गूगल एड्स ट्रैकिंग की। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन गाइस बिफोर मूविंग अहेड, वन मोर क्वेश्चन। अगर आपको, इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, जितना भी मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है, मैं फोल्ड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ध्यान देखो, व्हाट इज गूगल एड्स, व्हाई गूगल एड्स। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है देन लेट मी नो, एंड देन वी विल आई विल क्लियर इट आउट। ओके, then only I will proceed further। okay, I do not want कि आपको कुछ doubts वगैरह यहाँ पर हैं। if you want to continue, sorry, if you want me to continue ahead, then just type continue in the chat box। if you guys have any doubt, you guys can just ask now। okay, because I do not want anyone to have any doubts। just type continue in the chat box if you want me to proceed। okay, if you guys have understood what I have taught yet। okay, okay guys, so this is very important because अगर हल्की सी भी confusion रहती है then we cannot relate things very well, that's why। okay, so now अब हम बात करेंगे Google Ads ट्रैकिंग की। अब देखो, ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है। ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आप जो कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, वो कैंपेन तो आप सही चला रहे हो, मगर ओके, उससे पहले मैं एक चीज आपको आज नया एक गूगल टैग मैनेजर के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल टैग मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स के पहले बाद में हम लोग जाते हैं गूगल टैग मैनेजर। ओके, वी यूज इट टू मैनेज कोड ऑन आवर हेडर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है,
तो देखो गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, सबसे पहले तो वो चीज जान लेते हैं। ओके, टैग मैनेजर क्या होता है? गूगल टैग मैनेजर, हाउ मेनी ऑफ कोई जानता तो उसके बारे में होगा नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने कुछ टैग, आप गूगल टैग मैनेजर पे जाना, ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट करने का। ओके, सो वहां से आप क्या कर देना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। ओके, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक डोमेन नेम मैं ले लेता हूँ फॉर द लर्निंग पर्पस। ओके, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, तब तक मैं बैकएंड में लॉगिन कर रहा हूँ वेबसाइट के, ठीक है, दैट्स व्हाई I'm not doing something. It's not like there's something internet problem. Okay, so I have logged in into Pro Streaming. Pro Streaming. No. The Spot Fashion. Okay. सो मैं गौरव की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा कैसे हम। ओके, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि जो भी हमारी नाम है कंपनी का या फिर हमारे ब्रांड का, ठीक है, वो डाल दो आप। द स्पॉट फैशन, कंट्री आप सेलेक्ट कर लो इंडिया, ठीक है, एंड देन आपका जो वेबसाइट का नेम है वो आप यहाँ पर डाल दो, कंटेनर नेम लाइक spotfashion.co.in। ओके, द spotfashion.co.in। ओके, और ये क्या है, ये एक वेबसाइट है हमारी, ठीक है, एंड देन हम लोग क्रिएट कर देंगे। ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड देन यस पे क्लिक करना है। ओके, ओके, सो मैं यहाँ पर अभी 10 स्पॉट फैशन के बैकएंड में लॉग इन कर गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अपडेट्स वगैरह हैं और ये सब चीज़ें हैं, मैं इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ओके, तो हेडर एंड फुटर पे क्या होता है, हेडर एंड फुटर यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम कोई सा भी कोड अपने वेबसाइट के सभी पेजेस में ऐड कर सकें। ओके, तो इसका पर्पस ये होता है हेडर एंड फुटर का। यहाँ से मैं इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे जाऊंगा। ओके, यहाँ पर देखो जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये गूगल का एनालिटिक्स का कोड यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, ये चीज मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है। ओके, देयर हैज बीन अपडेट इन प्लगइन वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो एकदम ब्लैंक हो गया मेरा साइट, ठीक है, इट मीन्स कोई सा भी हेडर पे कोड नहीं लगा हुआ है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो चीज। अब देखो गूगल टैग मैनेजर कहाँ पर गया, वेयर आर यू गूगल टैग। अब देखो जब आप गूगल टैग मैनेजर आप बना लोगे, देन उसके बाद में आपको आएगा इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, आपके पास में ये नोटिफिकेशन आएगी। आप बोल रहा है कि पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द वेब पेज। इसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। ओके, तो यहाँ पर मैंने गूगल टैग में जो ये रहा कोड पे कॉपी करके यहाँ पर हेड पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर मुझे गूगल बोल रहा है कि इसके अलावा क्या करो, बॉडी टैग में, ठीक है, ये वाला कोड यहाँ पर इंस्टॉल करो। तो आपको बॉडी में ये वाला टैग इंस्टॉल करना है। इसके बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, देखो जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप मार्केटिंग में आगे बढ़ो तो आपको बहुत सारे मल्टीपल कोड क्या करने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, मैंने गूगल एनालिटिक्स का अभी कोड रिमूव कर दिया है, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी मैं गूगल एनालिटिक्स का कोड भी इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, और वही चीज मैंने इंस्टॉल करने के लिए अभी गूगल टैग मैनेजर यूज कर रहा हूँ।
टैग मैनेजर का मतलब ये है कि आप मल्टीपल कोड अपनी वेबसाइट पे मैनेज करने के लिए आपको बार बार आपको इंसर्ट कोड पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आप गूगल टैग मैनेजर यूज करके आप अलग अलग टैग क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके अर्पित, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, आई विल जस्ट मेक एवरीथिंग वर्क्स, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको कर देना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड अ न्यू टैग, ओके। इसके बाद में आपको क्लिक करना है ऐड अ न्यू टैग, ठीक है। अब ऐड अ न्यू टैग कैसे क्लिक करोगे, आप जाओगे, आप आ जाओ एनालिटिक्स पे, ठीक है। आप अपने एनालिटिक्स पे जाके आपको एक नई प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज जिस भी जीमेल अकाउंट से आपका एनालिटिक्स अकाउंट बना होगा, ठीक है, सो गौरव कैन रिट्रीव दैट अकाउंट, रिट्रीव दैट कोड, पीस ऑफ कोड, ओके। इट्स वेरी इजी टू रिट्रीव। जैसे कि मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। सो मैं यहाँ से देखो यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट प्रॉपर्टी पे। मैं किसको विजिट करना था, वेब को करना चाहता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मेरी वेबसाइट का नाम क्या पर है, मेरी वेबसाइट का नाम है क्या नाम है मेरी वेबसाइट का, द स्पॉट फैशन, ओके। मेरी वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है, ठीक है। HTTPS लगने के साथ में मैं अपना डोमेन कॉपी कर लेता हूँ, ओके। ये मैंने यहाँ पर कॉपी के लिए, क्या इंडस्ट्री है, मेरा इंडस्ट्री है ब्यूटी एंड फिटनेस, रिपोर्टिंग टाइम क्रिएट कर देता हूँ, सब कुछ सही है। और आपको सारे जो ऑप्शन चूज करने हैं सही सही से, ठीक है। एंड देन आपने क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपको ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ओके। मगर अब देखो ये चीज मैंने कर दी, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या करना है, आप गूगल टैग मैनेजर पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग सा आपको बोलेगा कि कौन कौन सा टैग इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप फेसबुक पिक्सल या फिर बहुत सारे टैग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आप बार बार अपने हेडर एंड फुटर पे जाओगे और यहाँ पर कोड पेस्ट करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है काफी हैवी हो जाएगी, ठीक है। वो आप देखो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स, ठीक है। मगर ये चीज तभी करनी है जब आपको ये चीज ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है। द स्पॉट फैशन का मैंने कोड यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, तब जाके मैं किस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे पेज व्यू करना है, ठीक है। और इसको ठीक है, और उसके बाद ट्रिगरिंग पे क्लिक करना है। ट्रिगरिंग पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो एनालिटिक्स का कोड है वो किन किन पेजेस पे करना है ट्रिगर, वो करना है मुझे सभी पेजेस पे करना है। तो मैं इसको ऐड पे क्लिक कर दूंगा, टाइटल यहाँ पर डाल देता हूँ मैं गूगल एनालिटिक्स, ओके। कोई स्टेप में दिखा रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे बोल रहा है एक नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, तो नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ गूगल एनालिटिक, ओके। सेव पे क्लिक कर देता हूँ, नया वेरिएबल हमारा हो गया ट्रैकिंग आईडी। देखो ट्रैकिंग यहाँ पर मुझे क्या मांग रहा है, ट्रैकिंग आईडी मांग रहा है। तो ट्रैकिंग आईडी हमारी क्या है, ये देखो, ठीक है, ये चीज। तो ट्रैकिंग आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, देन गूगल ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देन सेव पे क्लिक कर दूंगा, ओके। सेव पे क्लिक हो गया, ठीक है। मैंने ट्रिगरिंग कहाँ पर कर दी, ट्रिगरिंग का मतलब है कि ये जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है आपका, ये कोड, ठीक है, ये अब ऑटोमेटिकली टैग मैनेजर के अंदर आ चुका है, ओके। देन मैं ट्रिगर पे क्लिक करके मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। मैंने क्या किया, सभी पेजेस पे मेरा गूगल एनालिटिक्स का कोड क्या करे, फायर करे, ठीक है। इसके बाद में मैं क्लिक करूंगा, देखो, ठीक है। मैंने एक टैग भी कर दिया, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और उस वेरिएबल में क्या डाल दिया था मैंने, ट्रैकिंग आईडी डाल दी थी। इसके बाद में मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू पे। अब प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है आपको, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में अपनी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन करना है, होम पेज। जब आप अपना होम पेज आप ओपन करोगे, देन उसके फुटर पे देखो, फुटर पे देखो, फुटर पे क्या हो रहा है, आर यू गाइस कैन सी टैग्स फायर्ड। यहाँ पर दिख रहा है टैग्स फायर्ड, कौन सा टैग फायर हुआ है, गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। और ये चीज किसकी वजह से हो पा रही है, ये चीज हो पा रही है टैग मैनेजर की वजह से, ओके। ये चीज हो पा रही है टैग मैनेजर की वजह से, ओके।
और जब ये प्रीव्यू तब तक शो करता रहेगा जब तक आप इसको यहाँ से सबमिट नहीं कर देते, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आप यहाँ से सबमिट कर दो कि हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सबमिट। आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, इट मीन्स आपका गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो सक्सेसफुली कहाँ पर लग गया है, आपकी वेबसाइट पे लग चुका है, ठीक है। ओके, सो आई होप you guys have understood how to install Google Analytics through Google Tag Manager. Yes or no in the chat box. If this thing is clear to you, just type yes or no in the chat box. Okay. Awesome guys, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है कि हाँ, अब देखो आपको बार बार आपको कोई सा भी टैग यूज करना पड़ेगा ना, मान लो आपको कोई नया कोड डालना है, ठीक है। तो नया कोड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चीज आपको बार बार अपने वेबसाइट पे हेडर पे जाके नहीं आपको चीज कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हम गूगल टैग मैनेजर यूज करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एनालिटिक्स से कोड पेस्ट करने के लिए बोला था, बिकॉज दैट टाइम वी आर जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है, और वहां पर चीजें कंफ्यूज नहीं करनी थी मुझे, दैट्स व्हाई मैंने वो चीज आपको नहीं बताई थी यहाँ पर कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, क्यों इसको यूज करना है, ठीक है। बिकॉज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग गूगल टैग मैनेजर इज वास्ट, ओके ओके। और आई होप यू गाइस आर डूइंग असाइनमेंट, और जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हो वो इस पोस्ट पे आप अपना वोट कर देना कि आपने कौन कौन सा असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, ठीक है, और कौन कौन सा असाइनमेंट ने कर लिया है, ओके। ये सारी चीजें जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू गाइस कि आप असाइनमेंट करते रहो, ओके। इसके बाद में देखो हमारा, अब देखो मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या गूगल एनालिटिक्स सही से काम कर भी रहा है। तो मैं अपने होम पेज पे हूँ द स्मार्ट फैशन के, ठीक है। अब देखो हाँ मेरा होम पेज काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा होम पेज यहाँ पर रियल एक्टिव यूजर दिखा रहा है ना 1, ठीक है। तो इसी वजह से इट मीन्स मेरा गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो काम कर रहा है। इट मीन्स आई हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड गूगल एनालिटिक्स बाय यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, ओके। तो ये चीज हमारी फुलफिल होगी, किस कैसे हो गई, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रैकिंग। अब हम क्या करेंगे, गूगल एड्स पे ट्रैकिंग करेंगे। एड चलाने से पहले, ठीक है, एड चलाने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। ट्रैकिंग कैसे करते हैं, देखो ट्रैकिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप एड चला रहे हो, सर आपने जो स्टेप किए हैं वो मुझे अपने गूगल अकाउंट से करना होगा। यस गौरव, ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तुम उसके बाद में अपना एक गूगल टैग मैनेजर बनाना, ठीक है। उसमें अपना जो चीज मैंने आज अभी की है जस्ट डू दैट, ओके, इट्स वेरी सिंपल। आज मैंने फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तुम्हारा अकाउंट यूज किया है, ठीक है, बिकॉज या अब देखो एड्स ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका मिशन है, ठीक है, आपका मे भी हो सकता है कि ये हो कि आप चाहते हो कि आपके लिए आपके साइन अप फॉर्म को लोग फिल करके थैंक यू पेज पे आए, ओके। तो वो लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। आप चाहते हो कि आप कार्ट पेज होता है, ठीक है, शॉपिंग पे एक कार्ट पेज होता है, CART पेज, कार्ट, जहाँ पर आपकी सारे ऑर्डर वैल्यूज वगैरह लिखी रहती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आई थिंक गौरव ने अपना लैंडिंग पेज बनाया है या नहीं, लेट मी चेक, इसमें थैंक यू पेज है या नहीं, ओके या थैंक यू पेज यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन फैशन स्टोर, यू कैन कॉल अस फॉर लेटेस्ट फैशन टिप, ठीक है। तो ये थैंक यू पेज है। थैंक यू पेज का मतलब ही ये होता है कि इस पेज को कोई इस तरह से खोलेगा नहीं। इस पेज को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेज को एक्सेस करने के लिए आपको इंक्वायरी फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पेज को फिल करने के लिए आपको इंक्वायरी फॉर्म फिल करोगे। इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के बाद में आप क्या होगा, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पर, आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पेज आपको क्या, ये पेज आपको क्या देता है, ये पेज आपको नोटिफाई करता है कि हाँ जितने भी यूजर आपको यहाँ पर विजिट किए हैं दे आर योर लीड, दे आर योर, और हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन होता है ना, अमेज़न से जब भी परचेज करते हैं तो हमारे पास में ऑर्डर कंफर्मेशन का एक पेज आता है। तो उस पेज का जो URL होता है, ठीक है, उस पेज का URL सभी के लिए सेम रहता है, ओके, बस कंटेंट बदलता रहता है, बट उस पेज का URL जो तो वो सेम रहता है। इट मीन्स कि जितने भी लोग उस पेज पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो लोग उन्होंने या तो उन्होंने कोई चीज परचेज करी है, या फिर उन्होंने कोई चीज या कोई लाइक लीड जनरेट हुई है,
ठीक है। तो ये तुम्हारा लैंडिंग पेज का फॉर्म हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, थैंक यू पेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने एडमिन पे जाएंगे, ठीक है। एडमिन पे जाने के बाद में हमें ट्रैक करना है, ओके। सो हम ट्रैक का मतलब ये हो गया, और ट्रैक हम दो तरह से कर सकते हैं। एक है हमारा बाय यूजिंग गूगल एनालिटिक्स, और दूसरा हो गया हमारा गूगल एड्स के अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रैक करेंगे गूगल एड्स एनालिटिक्स को, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गोल बनाएंगे, ठीक है। एक गोल हमारा क्या है, कि हमें ट्रैक करना है कि कितने लोग हमारे इस पेज पे आए हैं, ओके। लाइक थैंक यू पेज पे कितने लोग आए। तो यहाँ पर मैं एडमिन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज, ठीक है, बॉटम लेफ्ट पेज में एक प्रोडक्ट होगा, ओके गौरव, लेट मी चेक योर फॉर्म। सो यहाँ से इन्होंने फॉर्म बनाया होगा अपना कॉन्टैक्ट अस पेज का। तो ये इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म पे एडिट करते हैं, ठीक है। इंक्वायरी फॉर्म पे एडिट करने के बाद में इनका फॉर्म ठीक है, इसमें मुझे एक चीज़ बस चेक करनी है, हाँ ठीक है। तो इन्होंने कंफर्मेशन टाइप में क्या बोला है कि शो पेज, ठीक है, ये पेज शो कर दो, इंक्वायरी थैंक यू, इट्स फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई इंक्वायरी सबमिट कर देगा, इस पेज पे आ जाएगा। आपको बाद में देखो यहाँ पर एडमिन पे जाने के बाद में ऑल वेबसाइट डेटा के अंडर में आपके गोल्स का एक सेक्शन होगा। इस गोल्स में जाके आपको क्या करना है, आपको एक नया गोल क्रिएट करना है। न्यू गोल पे आप क्रिएट करो, ठीक है, प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद में अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको गोल सेटअप किस चीज के लिए करना है, आप क्या चीज ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है। तो आप रेवेन्यू ट्रैक करना चाहते हो, या फिर किसी ने अपॉइंटमेंट का फॉर्म फिल किया है, या फिर किसी ने क्रिएट कर दिया है अपना अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कस्टम, ठीक है। मैं इस सब में से कुछ भी नहीं चुनता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ कस्टम, ठीक है। और कस्टम मैं बोल देता हूँ कि लीड जेन, मतलब लीड जनरेटेड फॉर फैशन शो। मान लेते हैं कि जो गौरव है वो एक फैशन शो के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं उनके कॉलेज में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद में तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। इसके बाद में ये चीज किस तरह की है, डेस्टिनेशन, आप जिस कैसे कैसे आप इसको ट्रैक करना चाहते हो, कैसे, तो मैं डालता हूँ डेस्टिनेशन। अगर हमारे जो यूजर्स हैं वो इस पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है एंड दे आर कन्वर्टेड एज ए लीड, ओके। सो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि डेस्टिनेशन किसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल हमारी क्या है, thespotfashion.co.in/inquiry थैंक यू। यहाँ से मैं एक चीज कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं एनालिटिक्स पे जाऊंगा, इक्वल टू पे जाऊंगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो भी आपका पेज होगा, उस पेज का जो आखिरी का यूआरएल होगा ना, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पेस्ट करना है। अगर क्या अगर आप पेमेंट, अगर आपकी ये वैल्यू है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ $50 है, तो आप यहाँ वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए पूरी कॉस्टिंग आपके लिए दिखा देगा। ओके, देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, सेव पे क्लिक करने के बाद में देखो सब चीजें ऑन हो गई हैं, सब कुछ चीज परफेक्ट हो गई हैं, और जितने भी कन्वर्जन होते जाएंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये चीज आपने आप गोल को कैसे देखते हैं वो चीज दिखा देता हूँ आपको। कन्वर्जन पे आप जाओगे, कन्वर्जन पे आपको गोल्स पे क्लिक करना है, गोल्स पे ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आपके इस पेज को विजिट करेंगे, आपके उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ओके, बिकॉज ये पेज ऐसे ही तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इस पेज को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ओके। सो ये चीज यहाँ पर हो गई है। देखते हैं कुछ डेटा हमारे पास में अभी आया या नहीं आया, कलेक्ट डेटा हुआ या नहीं हुआ। ओके, अभी अभी हमारे पास में डेटा यहाँ पर कलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बट जल्दी हो जाएगा वो भी, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है।
ओके, सो अभी हमारे पास गोल का डेटा यहाँ पर नहीं हो रहा है, बट सून इट विल बी फिल्ड विद डेटा, ठीक है, कि कितने लोग कितने कन्वर्जन हुए हमारे, ये सारी चीजें। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का यूज करके हम इसका अपना कोई भी ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, अब देखो, दूसरा ये है कि आप कैसे अपना जो एनालिटिक्स का अकाउंट है, कैसे आप लिंक कर सकते हो, किससे, गूगल एड्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है गूगल एड्स पे, जब आप एडमिन पे क्लिक करोगे देन अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, किस प्रॉपर्टी के आप कर रहे हो। जैसे कि मैं कर रहा था द स्पॉट फैशन पे, ठीक है, द स्पॉट फैशन पे देखो यहाँ पर लिखा हो ना गूगल एड्स लिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गूगल एड्स, जिस अकाउंट से आप लॉग इन हो गए, देखो मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट से लॉग इन हूँ, और मेरा जो लॉग इन गूगल एड्स अकाउंट का नंबर क्या है मेरा, ठीक है, देखो मेरे गूगल एड्स का नंबर है 7268645512। तो जब भी आप अपने अकाउंट से लॉग इन हो गए, तो ये देखो 7268645512, ठीक है, ये मेरा एड अकाउंट का नंबर है, ठीक है, जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट नंबर, तो इसी तरह हमारा गूगल एड अकाउंट का नंबर भी होता है। ओके, एंड देन आपको देखो यहाँ पर बोल रहा है, हाँ ठीक है, इससे आप उसको किस गूगल एड अकाउंट से लिंक करना चाहते हो। तो ये एड अकाउंट है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है। इसको मैं लिंक का नाम दे देता हूँ द स्पॉट फैशन, ठीक है। ओके, तो उसमें देखो क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि गूगल एड्स आपके गूगल एनालिटिक्स से सारा का सारा डेटा क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। ओके, फेच करने के बाद में देन इट कैन यूज दैट डेटा फॉर रीमार्केटिंग, और या फिर जो भी उसको रिपर्पज करना है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में हेल्प हो जाएगी। इस तरह से क्या करते हो, ऑल ऑफ द डेटा पे आप क्लिक कर दो, देन लिंक अकाउंट। ओके, लिंक अकाउंट मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर डन पे क्लिक कर दो, सिंपल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका गूगल एड्स अकाउंट किससे लिंक हो गया, आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से लिंक हो गया, ठीक है। अब ये चीज आप कहाँ से देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपने जब क्लिक करोगे टूल्स एंड सेटिंग में, ठीक है, तो आपके पास में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है सेटअप के नीचे लिंक्ड अकाउंट। ओके, तो लिंक्ड अकाउंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन शो कर रहा है, इसको मैं करता हूँ डिटेल्स पे क्लिक। यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज, यहाँ पर मुझे बहुत सारे दिखा रहा है। एक तो मेरे जो गूगल एड्स अकाउंट से मेरे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी एनालिटिक प्रॉपर्टी ऐड है, एक तो क्रांतेश.com, दूसरी मैंने भी कौन सी ऐड करी, द स्पॉट फैशन.com, ठीक है, द स्पॉट फैशन, ठीक है, और उसकी आईडी ये थी। ओके, और एक चीज दिखा रहे लिंक। अब देखो जिनका मैंने लिंक नहीं कर रखा उनका लिंक नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ओके, सो आई होप गाइज यू आर एबल टू नो कि कैसे लिंक करते हैं गूगल एनालिटिक और गूगल एड्स। So just type yes or no in the chat box if you have understood this. Isn't it amazing और exciting कि कैसे गूगल डेटा ट्रांसफर होता है चीजों के बीच में। हाँ, awesome guys. ओके, ठीक है, तो ये चीज यहाँ से लिंक हो जाती है। इसके बाद में आप और भी चीजें कर सकते हो, और इसके बाद में क्या करना है, तो पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करके आप ट्रैक कर सकते हो अपने रिजल्ट्स, ठीक है। आपको गोल्स बनाने हैं, ठीक है, आप गूगल एड्स पे जाके टूल्स, कन्वर्जन, वेबसाइट इंपोर्ट। और दूसरा तरीका क्या है, आप गूगल एड्स पे जाओ, ठीक है। एक और तरीका है कि आपने जब आपका एनालिटिक्स, आपका अकाउंट पूरा बन चुका है, ठीक है, देन अपने गूगल एड्स पे जाके यहाँ पर जाओ, और फिर आपको जाना है कन्वर्जन पे। ओके, देन आपको कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपको आपको क्या क्या करना है, आपको एक नया, देखो यहाँ पर आपको कन्वर्जन ट्रैक करना है। कन्वर्जन ट्रैक करने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर आप वेबसाइट पे क्लिक करो, ठीक है, जस्ट सेकंड, दिस इज नॉट। यहाँ पर आपने कन्वर्जन पे क्लिक किया, ठीक है, कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आओगे, प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे के बाद में आपको ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का, ठीक है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। देन आपको करना है गूगल एनालिटिक्स से इंपोर्ट करना डेटा आपको, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना। और क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, आपने जो गोल बनाया था गूगल एनालिटिक्स पे, उस चीज को इंपोर्ट करना चाहते हो,
इम्पोर्ट एंड कंटिन्यू। ओके, तो क्या लिखा आ रहा है, यू हैव इम्पोर्टेड वन गोल फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो देखो लीड जनरेटेड फॉर फैशन शो, यहाँ पर ये चीज आपका क्या होगा, डेटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो ये चीज हमने क्या किया अभी तक हमने सीखा किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स और किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करके गोल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि कन्वर्जन में जाके आप ट्रैक कर सकते हो ये सारी चीजें। ओके, और आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कि कैसे गूगल एड्स का, किस तरह से गूगल एड का यूज कर सकते हैं हम कन्वर्जन ट्रैकिंग में। ओके, अब देखते हैं एंड देन आई विल शो यू कि कैसे कैंपेन बनता है, सारी चीजें। यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किस तरह के कैटेगरी को आप ट्रैक करना चाहते हो। क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट के लिए ट्रैक करना है कन्वर्जन। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप अपने अदर पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो कैटेगरी कौन सी चुननी है आपको, अदर करनी है। ठीक है, आप कोई भी परचेज को ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप एड टू कार्ट को ट्रैक नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये सब भी चीजें होती हैं। ठीक है, मगर आई एम शोइंग यू द इजीएस्ट वे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम कन्वर्जन नेम लिख देते हैं कि लीड फॉर फैशन स्पॉट। ठीक है, लीड फॉर फैशन स्पॉट ये नाम दे दिया। अब देखो वैल्यू का मतलब ये है कि क्या कोई आपके लिए ये जो लीड कन्वर्ट होगी, क्या इसकी कोई वैल्यू रखती है। इसका मतलब ये कि क्या इसकी कोई वैल्यू है मॉनेटरी बेनिफिट में। इट मींस क्या ये लीड $50 की है। ठीक है, $50 की, $100 की, कितने डॉलर्स की, तो अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं कि हमें कोई वैल्यू इसके लिए यूज नहीं करनी है। काउंट का मतलब क्या होता है गाइस, काउंट का मतलब क्या होता है कि क्या आप सारे के सारे जितने भी लोग जितने भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर कोई एक सिस्टम से एक बंदे को, एक सिस्टम से एक बंदे को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर मान लेते हैं कि ये कोई बंदा है। ठीक है, ये कोई बंदा है। ठीक है, और इसने क्या किया, आपका फॉर्म फिल किया। ठीक है, आपने आपका फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में ये गया थैंक यू पेज पे। ठीक है, थैंक यू पेज पे गया फॉर्म फिल करने के बाद में, ये इसका फॉर्म हो गया। ठीक है, नेम, नंबर, ठीक है, डिटेल्स वगैरह फॉर्म की इसने फिल की। अब मान लेते हैं कि इसने ये फॉर्म 2 बार सबमिट कर दिया, ये फॉर्म 2 बार सबमिट कर दिया, यही फॉर्म 2 बार सबमिट कर दिया। तो क्या आप इस चीज को एक बार काउंट करोगे या 2 बार काउंट करोगे। ठीक है, तो जनरली अगर इसको देखा जाए सही मायने में तो ये चीज एक ही बार होगी। ठीक है, हो सकता है इसने पहली बार में गलती कर दी हो, कुछ कर दिया तो उसने दोबारा भर दिया हो। तो ये एक बंदा था। ठीक है, इसने क्या किया, अपना फॉर्म एक बार में फिल किया। ठीक है, एक बार में फॉर्म फिल किया, थैंक यू पेज पे आ गया। ओके, तो इस चीज को आप कितनी बार काउंट करोगे, ये भी आपका काउंट करेगा एक बार। ठीक है, तो आप गूगल को ये बोल रहे हो कि अगर इसने 2 बार फॉर्म फिल किया तो इस चीज को मैं एक बार काउंट करूं कि 2 बार काउंट करूं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको एक बार बोलना है कि अगर किसी ने 2 बार फॉर्म फिल किया है तो उसको एक ही बार काउंट करो। ठीक है, एक बार फिल करेगा उसको तो एक ही बार करेंगे काउंट। ओके, देन हम जाते हैं तो इसको हम लोग कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड फॉर लीड्स। अब क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो क्या होता है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि कोई कन्वर्जन आपने मान लेते हैं 5 अगस्त को किसी का ऐड देखा। ठीक है, मगर उसका फॉर्म फिल किया 15 अगस्त को। 5 अगस्त को आपने ऐड देखा और उसका फॉर्म फिल कब किया आपने, 15 अगस्त को। इट मीन्स आपने 15 दिन लगाए उस फॉर्म को आपने कन्वर्ट होने में। ठीक है, 15 दिन लगाए। तो आप इस ये पीरियड कितने दिन का रखना चाहते हो ताकि आप एक कन्वर्जन को ट्रैक कर सको। ठीक है, डेज टू कन्वर्जन। तो हम ये 30 डेज कर देते हैं। 30 डेज इज द 30 डेज, जो भी आपका जिस तरह का भी आपका इवेंट हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 30 दिन रखते हैं जनरली। और देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम अ पर्सन, ओके, और मान लेते हैं कि किसी ने आपका ऐड देखा मगर उससे इंटरेक्ट नहीं किया, मतलब इंप्रेशन पड़ा
और उसको इंटरेक्ट नहीं किया, बाद में जाके इंटरेक्ट किया, तो क्या उसको कन्वर्जन आप मानोगे? और कितने देर में, कितने टाइम लिमिट में मानोगे उसको? तो 1 दिन में या 3 दिन में? तो 1 दिन हम जनरली लेते हैं। और कन्वर्जन में आप इसको यहाँ पर इंक्लूड दीज कन्वर्जन इन योर कन्वर्जन कॉलम, ठीक है, इसको कन्वर्जन कॉलम में रखना। और एट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस तरह से आप इसको चाहते हो कि लास्ट क्लिक जो उसने इंसान ने की थी उसको आप इसको एट्रीब्यूशन में किया। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस तरह से आप कन्वर्जन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देन आप क्लिक कर देना क्रिएट एंड कंटिन्यू। क्रिएट एंड कंटिन्यू के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा क्या, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ और ईमेल, ठीक है। अब देखो तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये क्या किया है मैंने, गूगल एड्स के अंदर मैं कन्वर्जन ट्रैक कर रहा हूँ। Okay, so let me know in the chat box how many of you guys are with me. Type with you in the chat box. If you are with me, like you are understanding things and you are not deviated from the things I'm teaching you, just type with you in the chat box. Okay, awesome guys. Okay, if you are with me then that's great guys. Okay, you guys are understanding things. ओके नाउ आप देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो ये टैग खुद इंस्टॉल कर लें। अगर खुद इंस्टॉल करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखो ये टैग आपको जाके अपने वेबसाइट में पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये टैग पेस्ट करना पड़ेगा उस पेज पे जिस पेज को क्या मान रहे हो आप, थैंक यू पेज मान रहे हो, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्या, ये चीज रिकमेंडेड नहीं है। आप एचटीएमएल भी यूज इस कोड को जाके पेस्ट कर सकते हो, मगर मैं क्या करूंगा, मैं गूगल टैग मैनेजर यूज करूंगा। ओके, सो आई विल बी यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे बार बार अपने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करो तो हो सकता है कि वहां पर क्या हो, आप एज ए डेवलपर काम ना कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप सिर्फ उनके गूगल एड संभाल रहे हो और आपको सिर्फ टैग मैनेजर का एक्सेस दिया हो। ओके, सो मैं अगेन अपने गूगल टैग मैनेजर पे जाऊंगा और वहां से आप क्या कर सकते हो, आप विदाउट एनी इश्यूज, आप किसी डेवलपर को आपको बोलना भी नहीं है कि आपको ऐसा ऐड करना है। यू कैन जस्ट यूज योर गूगल टैग मैनेजर फॉर फिर मैं यहाँ पर अपने जो भी thespartfashion.co.in पे जाऊंगा, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ पर मैं इसको लीव हम लास्ट टाइम लीव प्रीव्यू मोड को रहने दिया था, इसको सबमिट कर देते हैं। आई थिंक पब्लिश नहीं हुआ था क्या, या ओके। तो अभी चीज हमारी पब्लिश हो गई है टैग, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स टैग। अभी मैं इसको लीव प्रीव्यू मोड कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू मोड वही था कि यहाँ पर जब हम प्रीव्यू मोड ऑन करते हैं देन हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, फुटर पे जाके गूगल टैग का वो खुल जाता है, फिर वो हमें बताता है कौन कौन से टैग फायर हो चुके हैं। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो गूगल टैग मैनेजर का यूज करना है इस टैग को इंस्टॉल करने के लिए, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा न्यू टैग पे क्लिक करूंगा। न्यू टैग पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं टैब कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा। मैं कौन सा टैग डाल रहा हूँ, मैं गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब देखो मुझसे बोल रहा है कौन सा आपका कन्वर्जन आईडी क्या है। कन्वर्जन आईडी यहाँ से मैं कॉपी करूंगा ये चीज, ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। कन्वर्जन लेबल क्या है, लेबल हमारा ये है, ठीक है। कन्वर्जन लेबल हो गया, ठीक है। और उसकी कोई वैल्यू रखनी है क्या, वैल्यू नहीं रखनी है। ऑर्डर आईडी कुछ भी नहीं रखना है हमको, ठीक है। बाकी सारी चीजें जैसी हैं वैसे ही रखनी है हमको, कुछ भी। ट्रिगर कहाँ पर हो, ट्रिगर का मतलब ये है, ट्रिगर का मतलब है क्या ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो ये है, क्या ये सारे पेजेस पे ट्रिगर करे या फिर किसी एक पेज पे ट्रिगर करे। तो हाँ, ये किसी एक पेज पे करे और वो पेज कौन सा था, थैंक यू पेज था, ठीक है। तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा इस पे थैंक यू पेज, ओके। फिर मैं इस पे जाऊंगा, फिर मैं क्लिक करूंगा पेज व्यू पे। पेज व्यू पे क्या, सम पेज व्यू पे, मैं सभी पे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाऊंगा पोस्ट पेज यूआरएल, ठीक है। पेज यूआरएल में कंटेंट्स में डाल दूंगा मैं, पेज हमारा कौन सा था, थैंक यू पेज था। सो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, इंक्वायरी थैंक यू हमारा स्लग था, ठीक है। इसी स्लग को स्लैश में डाल के ये चीज डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंटेंट्स हो गया। इट मीन्स कि पेज का यूआरएल जो है इंक्वायरी थैंक यू का कंटेंट करेगा। इट मीन्स हमारा पेज ट्रिगर हो गया, मतलब वो कन्वर्जन ट्रैक हो गया, ठीक है। देन सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद में
यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड देन इसको मैं यहाँ पे एंड देन आई विल प्रीव्यू इट, ओके, देन आई विल क्लिक ऑन प्रीव्यू। अब प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश, यहाँ जब मेरा प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, देन आई विल गो टू माय होम पेज एंड आई विल क्लिक ऑन रिफ्रेश, ओके। सो देखो प्रीव्यू मोड अभी ऑन है, ठीक है, प्रीव्यू मोड अभी ऑन है, तो हमारा क्या होगा, गूगल टैग मैनेजर अभी रन करेगा और यहाँ पर हमें दिखाएगा। तो देखो कौन कौन से टैग हमारे फायर हुए हैं, हमारे टैग कौन कौन से फायर हुए हैं, हमारे हुए हैं गूगल एनालिटिक्स का टैग फायर हुआ है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लगाया था, और उसको हमने क्या बोला था कि सभी पेजेस पे फायर होना, ठीक है। और हमने कौन सा टैग बोला है कि नहीं फायर हुआ है, यहाँ पर इस पेज पे कौन सा टैग फायर नहीं हुआ है, टैग्स नॉट फायर। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो कोड है ये फायर नहीं हुआ है, क्यों फायर नहीं हुआ है, बिकॉज ये हमारा होम पेज है, ओके। सो दिस इज माई होम पेज, तो ये फायर कहाँ पर होगा, ये थैंक यू पेज पे होगा, ओके। सो इंक्वायरी थैंक यू पे हम जब विजिट करेंगे तब क्या होगा, तब देखते हैं कौन कौन से टैग हमारे फायर होते हैं, ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कौन कौन से टैग फायर हो रहे हैं, एक तो हमारा गूगल एनालिटिक्स कोड फायर हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा कन्वर्जन ट्रैक भी हो रहा है, इट मीन्स जितने भी लोग इस स्टोर पे आ रहे हैं, जब भी आप ऐड चलाओगे तो आपको ट्रैकिंग होना चाहिए ना कि आपके कितने लोग ऐड से आए हैं, कितने लोग किससे आए हैं। इसीलिए हम लोग ये कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, ताकि हम लोग जितने भी कैंपेन हमने पैसे लगाए हैं उस पैसे का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कितना आपने आरओआई जनरेट किया है, कितना चीजें जनरेट करी हैं, ये चीज हम जान सके। इस वजह से क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग का यूज करते हैं। तो हमारे होम पेज पे ये चीज फायर नहीं हो रही थी, मगर हमारे इस थैंक यू पेज पे फायर हो रही है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। इसके बाद में आपको अपना प्रीव्यू मोड पे सबमिट कर देना है अपनी चीजें, पब्लिश पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, तो इट विल लाइक सिंग लाइक नो वन इज लिसनिंग, yes, so this is submitted, okay। so हमने फिर मैं अपने आता हूँ वर्क स्पेस में, एंड वर्क स्पेस में जाके मैं इसको लीव कर देता हूँ प्रीव्यू मोड, अदरवाइज जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे तो ये चीज शो होते रहेगी, ओके। एक गूगल प्लगइन होता है गाइस, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, ओके, गूगल टैग मैनेजर एक्सटेंशन आप गूगल पे सर्च करोगे, देन आपको एक क्रोम का एक टैग असिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस टैग असिस्टेंट से क्या होगा, आप इसको अपने में ऐड कर लेना, देन जो भी वेबसाइट गूगल टैग यूज कर रही है, जो भी वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर यूज कर रही है, वो इजिली डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर मैं द स्कॉट फैशन में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है गूगल टैग मैनेजर, तो यहाँ पर देखो गूगल टैग असिस्टेंट को इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद में मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ देखो कौन कौन सा टैग यहाँ पर फायर हुआ है, तो गूगल एनालिटिक का टैग फायर हुआ है, देखो देख रहे हो, गूगल एनालिटिक का कौन सा कोड है, ये है, गूगल टैग मैनेजर कौन सा कोड है, ये है, ठीक है। तो दो कोड फायर हुए हैं, सबसे पहले गूगल एनालिटिक का कोड फायर हुआ है, देन गूगल टैग मैनेजर का कोड फायर हुआ है। अब हम जैसे इससे पेज चेंज करेंगे वैसे वैसे हमको दिख जाएगा कि कैसे, अब देखो, तो आप यहाँ वहां से भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से मैंने ट्रैक किया। अब देखो कौन कौन से टैग हो रहे हैं, गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला कोड फायर हुआ है, एनालिटिक फायर हुआ है, और गूगल टैग मैनेजर फायर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिखा रहा है, बिकॉज हम लोग थैंक यू पेज पे आ गए हैं, ओके। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर टू यू। awesome guys, ओके। सो इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ, इसको थैंक यू पेज को भी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने गूगल एनालिटिक्स देखा था, गूगल एड्स, गूगल इसका भी हमने यूज देख लिया, ऑलमोस्ट सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, डन कर देना, ठीक है। ये आपने क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, हमने 2 चीजें करी, ठीक है। एक तो हमने गूगल एनालिटिक्स का यूज करके सारा डेटा इंपोर्ट कर दिया और वहां से ट्रैकिंग कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, गूगल एड के अंदर ही गूगल टैग मैनेजर का यूज करते क्या कर दिया, कन्वर्जन ट्रैक कर दिया, ओके। सो दिस इज लाइक किया, ऐसे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ओके। अभी मैं जस्ट अ मिनट,
Okay.